بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسکوپ آف ٹیچر ایجوکیشن. تو اس سے پہلے ہم نے ٹیچر ایجوکیشن کو ڈسکس کیا ہے، ٹیچر ایجوکیشن کی امپورٹنس کو دیکھا ہے، ٹیچر ایجوکیشن کی نیڈ کو دیکھا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم نے ٹیچر ایجوکیشن کے نیچر کو دیکھا ہے. تو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ٹیچر ایجوکیشن کا اسکوپ کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیچر ایجوکیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جو اساتذہ کو جو ہے یا ٹیچرس کو جو ہے وہ تعلیم کے نئے طریقوں سے روشناس کرایا جاتا ہے. ان کی جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے. ان کو جو ہے تعلیم کے نئے تعلیم و تدریس کے نئے طریقوں کے ساتھ نئی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئی نئی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے ان کو آگاہ رکھا جا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں جا کے سوسائٹی میں جا کے معاشرے اور سوسائٹی کی ضروریات کے مطابق، ان کی نیڈس کے مطابق، ان کی صلاحیتوں کے مطابق، ان کے خواہشات کے مطابق جو معاشرے میں چیزیں ریکوائرڈ ہے، جو اس کے مطابق جو ہے وہ بچوں کی جو ہے تعلیم تربیت کر سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کی جو افرادی قوت ہوتی ہے، اس کے پروڈکٹیو ہونے کا جو انحصار ہوتا ہے وہ اس ملک کے ایجوکیشن سسٹم پر منحصر کر رہا ہوتا ہے کہ اس ملک کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کا جو تعلیمی نظام ہے وہ کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوا ہوگا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا جو وہاں پہ جو افرادی قوت ہوتی ہے، ان لوگوں کے پاس جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے یا اسکل جو ہوتی ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں کہ وہاں کا جو تعلیمی سسٹم ہوتا ہے، تعلیمی نظام ہوتا ہے، وہ ترقی پذیر ممالک کی نسبت زیادہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے بجٹ کا زیادہ حصہ یا بجٹ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ تعلیم کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ معلوم ہوتا ہے، وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پروڈکٹیو ورکر پروڈیوس کرنے ہیں تو تبھی جا کے وہ جو ہے ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کے پاس افرادی قوت جو ہے وہ اسکلفل ہوگی، ان کے پاس جو ہے وہ جدید نالج ہوگا، تو وہ معاشرے کے لیے جب معاشرے میں جائیں گے، سوسائٹی میں جائیں گے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کام کریں گے، تو وہ کام جو ہے وہ ایک ان ٹرین بندے کے مقابلے میں یا جو بندہ جس کی اسکل کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پالش نہیں کیا گیا ہے، تو یا اس کو جو ہے جدید ٹیکنالوجی سے، جدید طریقوں کے ساتھ روشناس نہیں کرایا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ نئے طریقوں سے ان کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ جو لوگ اس سے واقف ہیں یا اس کے بارے میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا نالج زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ٹیچر ایجوکیشن کے اسکوپ کی بات کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز آپ یعنی ٹیچر ایجوکیشن کے اسکوپ کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن آپ کے ہونی چاہیے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اف یو ایجوکیٹ اے بوائے، اگر آپ ایک لڑکے کو پڑھاتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، یو ایجوکیٹ ون انڈیویجول. ٹھیک ہے، یو ایجوکیٹ اے انڈیویجول، کہ اگر آپ ایک لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فرد واحد کو تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اف یو ایجوکیٹ اے گرل، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ ایک لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں، یو ایجوکیٹ اے ہول فیملی، تو آپ ایک پورے خاندان کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے پورے خاندان کی تعلیم و تربیت کرنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ فرد واحد تک محدود ہوتی ہے، لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو وہ پورے خاندان تک منحصر ہوتی ہے. اس کے ساتھ مزید کہا جاتا ہے اف یو ایجوکیٹ اے ٹیچر، کہ اگر آپ ایک ٹیچر کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اس میں یو ایجوکیٹ اے ہول کمیونٹی. اس کا مطلب ہے کہ آپ پورے معاشرے کو تعلیم دے رہے ہیں، کیونکہ ٹیچر نے کل معاشرے کے اندر جانا ہے، سوسائٹی کے اندر جانا ہے. سوسائٹی کے اندر جا کے اس نے جو ہے قوم کے بچوں کو تعلیم سے روشناس کرانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پورے سوسائٹی کو جو ہے وہ آپ تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ تعلیم کے اوپر زیادہ خرچ کر رہے ہیں، ٹیچرس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک آپ ٹیچرس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو تب تک آپ جو ہے وہ پروڈکٹیو ورکرز، پروڈکٹیو آپ کے پاس جو ہے وہ نیشن جو ہے وہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یعنی یہی وہ فیلڈ ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو تبھی جا کے آپ کو معاشرے کے اندر جو ثمرات، فوائد ملیں گے، بینیفٹس ملیں گے، وہ یہاں سے ہی ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
یعنی اگر آپ کا ٹیچر جو ہے وہ ٹرینڈ ہے، اس کو جو ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اس سے آپ روش راست کرا رہے ہیں، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ معاشرے کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم اسکول کے بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اگر آپ ٹیچر ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں تو ٹیچر ایجوکیشن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ٹیچر ایجوکیشن جو ہے یہ کنٹینیوس اور لائف لانگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی لمٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی جو ہے اس کی حد آخر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی علم کی کوئی حد نہیں ہے. ٹھیک ہے، it is a continuous process. ٹھیک ہے، کہ یہ ایک مسلسل چلنے والا، مسلسل رہنے والا، مسلسل سیکھنے والا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ایک بار تعلیم حاصل کر لی، آپ کے پاس ایک چیز آ گیا، اس چیز کے اوپر آپ صرف انحصار نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہو گیا، وقت بدل رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، ہر نئی چیز آ رہی ہے، تو اس کے مطابق آپ کو علم حاصل کرنا ہے، بچوں کو جو ہے اسی کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، تاکہ وہ معاشرے کے اندر جا کے، سوسائٹی کے اندر جا کے جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے مستقبل کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ تاکہ ان کا جو مستقبل ہے وہ جو ہے وہ آپ کو روشن نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے معاشرے کے بچوں کی، سوسائٹی کے بچوں کی جو تعلیم و تربیت کرنی ہے وہ آپ نے اس نظریے کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ تبھی آگے ہو سکتی ہے کہ جب آپ ٹیچرس کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً یا آپ کو اس کو جو ہے وہ تعلیم دیتے رہیں گے، اس کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں گے، تو تبھی آگے جو ہے آپ کے معاشرے کی ضروریات پوری ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم نے کنٹینیوس پروسیس اس کو کہا ہے. تو کنٹینیوس پروسیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچر ایجوکیشن کے اگر اسٹرکچر کو دیکھیں تو ٹیچر ایجوکیشن یعنی ہم نے کہا کہ آپ نے ٹیچرس کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، ٹیچر کو ٹرین کرنا ہے، ان کے پاس جو نالج ہے، ان کے پاس جو طریقہ تدریس ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے جو ہے وہ مزید ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، نئی طریقے ان کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ وہ نئی نئی چیزیں سیکھ سکیں اور پھر معاشرے میں جا کے بچوں کی اسی طرح سے تعلیم و تربیت کر سکیں. ٹھیک ہے، کنٹینیوس پروسیس کی بات کرتے ہیں تو کنٹینیوس پروسیس جو ہے یہ پری سروس ان سروس اسٹیج پہ مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس میں مزید چیز بھی آ جاتی ہے، انجیکشن اسٹیج بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو زیادہ یوز ہوتی ہیں پوری سروس کی کام یوز ہوتی ہیں. یہ کنٹینیوس پروسیس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ مسلسل سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. ایک وہ چیز ہے جو آپ سروس میں آنے سے پہلے پری سروس. ٹھیک ہے، یعنی کچھ ریکوائرمنٹ ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ اس پروفیشن کے اندر جائیں گے تو اس پروفیشن میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو ریکوائر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں آپ کے پاس ہوگی، وہ نالج آپ کے پاس ہوگا، وہ ڈگری آپ کے پاس ہوگی، وہ اسپیسیفک ڈپلوما آپ کے پاس ہوگا، تو تبھی جا کے آپ اس پروفیشن کے اندر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پری سروس جو ہے کون کون سی چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پری سروس میں اگر ہم بات کریں ٹیچر ایجوکیشن کے حوالے سے تو ٹیچر ایجوکیشن فیلڈ کو جوائن کرنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ پرائمری سطح کے اوپر یا پری پرائمری لیول جو ہے اس کے آپ کے پاس جو ہے ڈپلوما ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ پری پرائمری اسٹیج. آپ کے پاس 1 سال کا ڈپلوما ہونا چاہیے پری پرائمری اسٹیج کے اوپر، نرسری پریپ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس جو مونٹیسوری ڈپلوما ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے، تو تبھی جا کے آپ جو ہے وہ پری پرائمری اسٹیج پہ جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے پرائمری اسٹیج. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے اگر ہم جو اولڈ ٹرین چلا آ رہا تھا وہ کیا ریکوائرمنٹ تھی، سی ٹی اور پی ٹی سی. ٹھیک ہے، پاکستان کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آف ٹیچنگ یا
प्राइमरी टीचिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो तभी जाके जो है आप जो है प्राइमरी लेवल के ऊपर जो है वो टीचर एजुकेशन की फील्ड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। जो और अभी जो है इसको जो है वो जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया गया है, तो इस लेवल के ऊपर जो है वो आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री जो है वो होना लाजमी है, या आपके पास जो है वो एसोसिएट डिग्री एजुकेशन प्री सर्विस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो प्राइमरी स्टेज के ऊपर जो है अभी रिसर्च डेवलपमेंट हुई है, उस लिहाज से जो आपके पास जो है वो एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन ये ठीक है। आपके पास जो है वो एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, यहाँ आपके पास जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो है नर्स से मुश्तमिल होती है, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है। इसमें जो है कौन सी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, इसलिए अभी आज जो है या बाकी चीज़ें भी जो आगे हम डिस्कस करेंगे वो मज़ीद इसमें हम डिटेल में जो है वो आगे जाके अपने आने वाले दिनों में आप इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्लियर है प्राइमरी स्टेज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकेंडरी स्टेज आती है उसके ऊपर जो है सेकेंडरी स्टेज के लिए जो है आपके पास सर्विस में आने से पहले जो है आपके पास B.Ed और इसके साथ M.Ed का होना जरूरी होता है, ठीक है। यानी सेकेंडरी स्टेज के ऊपर अगर आप जो टीचिंग फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ जो है अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो आपके पास मास्टर डिग्री प्लस जो है B.Ed जो है वो होना जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो एक इदारे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, यानी सदर गवर्नमेंट के पोस्ट, हेड टीचर्स के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मास्टर डिग्री के साथ साथ B.Ed प्लस M.Ed का होना जरूरी होता है, ठीक है। या इसके साथ आप जा सकते हैं M.A एजुकेशन, ठीक है। तो इसके बाद हायर सेकेंडरी स्टेज होती है, उसके साथ उसमें भी आपके पास आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, M.Phil होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं तो आपके पास जो है वो PhD लेवल तक इसकी पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ भी आपके पास जो है इसके ऑप्शन होते हैं टीचर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो कुछ ये तो आपके आ गया है ना कि जो आपके रोजमर्रा के स्टोर होते हैं, ठीक है, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके अंदर है, ठीक है। इसके अलावा कोई टेक्निकल चीज़ है वो आपकी वोकेशनल एजुकेशन स्टेज के अंदर आती है, उसमें जो आपके पास जो है वो स्पेसिफिक फील्ड के लिहाज से जो आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए, तो कभी जाके आप उस लेवल पर आप आ सकते हैं, जैसे ड्राइंग है, ठीक है, और इस तरह के दीगर हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके पास स्पेसिफिक डिप्लोमा होना चाहिए, वो आप उस फील्ड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस जो है टीचर के लिए जरूरी है, वो जब इस फील्ड में आता है तो वो अपनी सर्विस जो उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए वो कंटिन्यूस प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं, उसमें जो है एक स्टेज आ रही है प्री सर्विस, तो उसके बाद उसके बाद जो रेगुलर डिग्री होती है, मास्टर बैचलर जो रिक्वायरमेंट है वो तो होगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ वो आपकी प्री सर्विस में जो है वो चीज़ें मौजूद होती है, वो आपके पास होंगी, तो तभी जाके आप इस सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं इंडक्शन। इंडक्शन ट्रेनिंग कौन सी होती है कि जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, आपको इंडक्ट कर दिया जाता है, आपको रिक्रूट कर दिया जाता है, तो आप इस महकमे में जब आते हैं तो इस महकमे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसकी पॉलिसीज होती हैं, इसके प्रोसीजर होते हैं जिनको आप फॉलो करना होता है, उसके मुताबिक आपने चलना होता है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जॉब ड्यूटीज़ हैं, तो वो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर जो है उससे जो है आपको रोशनास कराया जाएगा, आपको बताया जाता है, ठीक है। आपने आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज मौजूद है, आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ये चीज़ें तो आपने जो है वो आपने जो है एकेडमिक्स के अंदर चीज़ें पढ़ी हुई, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री मौजूद है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक महकमे के लिहाज से कुछ खास जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रोसीजर है, जिनको आपने फॉलो करना होता है, ठीक है।
तो वो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब ड्यूटीज़ को देखा जाता है, उनको मद्देनजर रखे आपको बताया जाता है, ठीक है। तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाता है, ठीक है, सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को। और उसके साथ साथ जो है आपकी जो आपने चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर आपने पड़ी होती हैं, उनको रिफ्रेश किया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने बच्चों को इस तरह से लेके चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को, ठीक है, आपने कौन सी तरीका तदरीस को अपनाना है, जो रजिस्टर की जो है वो इदारे के अंदर अप्लीकेबल होता है, उससे आपको रोशनास कराया जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्शन ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है वो टीचर एजुकेशन में इससे आपको रोशनास कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक है। एक सर्विस है आपको, दूसरा मेन पार्ट था वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है कि जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो इस फील्ड में आने के बाद जो है वो ड्यूरिंग सर्विस भी आपको जो है वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन, ड्यूरिंग सर्विस या सर्विस के दौरान आपको जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको जो है अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपनी सलाहियतों को बेहतर करने के लिए, नई तरीक़ा तदरीस से रोशनास होने के लिए, नई टेक्नोलॉजी से वाक़ुफ़ होने के लिए, दुनिया का मुकाबला करने के लिए जो है आपको ड्यूरिंग सर्विस में जो है टीचर एजुकेशन फराहम की जाती है, आपकी जो है वो आपको एजुकेट किया जाता है, ठीक है। तो तभी जाके ये कंटिन्यूस रिसर्च होता है, ये मुकम्मल होता है, ठीक है। यानी आपके सर्विस से पहले सर्विस में आने के साथ ही इंडक्शन ट्रेनिंग का कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद आपको ड्यूरिंग सर्विस जो है जिस लेवल पे भी गवर्नमेंट सर्विस है आपको जो है उसको इस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो है वक्तन फवक्तन जो है वो ट्रेनिंग होती रहे, जो भी चीज़ नहीं आई, जो भी प्रॉब्लम जो है माशरे के अंदर आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के मुताबिक आपको जो है वो ट्रेन किया जाए ताकि आप बच्चों को जो है उससे मसले का हल बता सकें, ठीक है। इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के अंदर आपको क्या होता है कि फील्ड बेस्ड लर्निंग हो सकती है, ठीक है। फील्ड बेस्ड फील्ड के अंदर जाके देखते हैं कौन सा मसला है, उस फील्ड के अंदर जाके उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ डिफरेंट पॉइंट से उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, डिफरेंट उसके कंटेंट्स हो सकते हैं और फ्रेश ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ सेमिनार्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टडी टूर्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टडी टूर्स हो सकते हैं और रिसर्च हो सकती है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, ठीक। तो ये ड्यूरिंग सर्विस मज़ीद चीज़ें भी होंगी जो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन और जो आपको जो है मकसूद है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो अपनी सर्विस इंडक्शन ट्रेनिंग और सर्विस ट्रेनिंग शामिल होती है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो ये हमने ये सर्विस प्री सर्विस और इंडक्शन ट्रेनिंग की बात की है या इसे ट्रेनिंग की बात की है, तो इसके जो फ़वाइद हासिल होते हैं या जो इसका मतलब होता है या जो मकसद होता है कि आपने ये ट्रेनिंग जो है या ये तालीम और तरबियत जो है एक उस्ताद की क्यों करनी है, तो उसका मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उन चीज़ों को देखते हैं, उस स्कोप के अंदर आते हैं, ठीक है। कि आपने इसको क्यों जो है वो टीचर को जो है ट्रेन करना है, ठीक है। तो वो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि मेन मकसद क्या होता है टीचर एजुकेशन का कि आपने जो टीचर है उनकी करेक्टर बिल्डिंग करनी है, करेक्टर बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, ठीक है। कि आपने टीचर्स की करेक्टर बिल्डिंग करनी है, आपने उनको कोड ऑफ कंडक्ट बताना है, आपने उनको एक ज़ाब्ता हयात देना है, ठीक है, कि जिसके ऊपर उन्होंने चलना है, आपने आपको उन्होंने मसाले बनाना है, आपने आपको एक नमूना बनाना है, ठीक है। क्योंकि जो है टीचर होता है वो सारे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है, ठीक है। तो जब तक उसके आपने हयातियात बेहतर नहीं होंगी, उसका जो है
करेक्टर बिल्डिंग जो है वो अच्छा नहीं होगा, जो बच्चे जो है बच्चों के लिए रोल मॉडल है, तो बच्चे उसको देख के अच्छा तासर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एक टीचर जो है उसका जो करेक्टर बिल्डिंग है वो बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। उसका करेक्टर जो है वो सबके लिए मिसाली होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चों के रोल मॉडल जो है उसके जो है मुस्बत असर बच्चों तक जाए, ठीक है। करेक्टर बिल्डिंग ऑफ टीचर की सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि इसका मकसद होता है कि आपने टीचर्स की जो है करेक्टर बिल्डिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कंटेंट एनालिसिस की या कंटेंट बेस्ड लर्निंग। एक जब हम बात कर रहे हैं कि सर्वस्व दोनों के मुकाबले में एक चीज़ आती है कंटेंट एनालिसिस के एक खास जो मवाद आपने बच्चों तक पहुँचाना है वो मवाद जो है उसका एनालिसिस किया जाता है, उस लिहाज से जो है ट्रेन की जाती है कि यह मवाद जो है वो किस हद तक बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके फ़वाइद कहाँ नज़र आएंगे, तो आपने कंटेंट एनालिसिस में टीचर की ट्रेनिंग करनी है कि जो है वो अच्छी तरह से कंटेंट से वाकुफ़ हो, उसके जो फ़वाइद हैं, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उससे वो अच्छी तरह वाकुफ़ हो जाए, ताकि वो बच्चों को जाके किसी तरह से उनकी तारीफ तरबियत कर सके। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है, ये जो टीचर है वो उसकी जो पास प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, ठीक है, तो इसी तरह की जो बाकी स्किल्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है उसको कैसे उसको इन्हांस कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स को आपने कैसे जो है प्रोडक्टिव बनाना है, उनको जो है वो इन्हांस करना है, उसको लेके आनी है, तो ये मकसद ये भी होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है स्किल्स इन्हांस। एक टीचर जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पैडागोजिकल स्किल्स का, प्रोफेशनल स्किल्स भी हैं, ठीक है, पैडागोजिकल स्किल्स भी हैं। तो पैडागोजिकल स्किल्स जो है उसको इन्हांस करने के लिए भी ये ट्रेनिंग कराई जाती है कि उसमें जो तरीका तदरीस है, मेथड ऑफ टीचिंग है, ठीक है, उनको इन्हांस करना है, ठीक है। तो उसको जो है आपने जो है पैडागोजिकल स्किल्स में आपने जो है मास्टर के अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने मद्देनजर रखना है कि मास्टर की ज़रूरियात को, मास्टर की नीड्स को, माशरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ लगा के आपने जो है वो टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है, तो उसी के मुताबिक उन्होंने अपने तरीका तदरीस को अपनाना है ताकि उनके मसाइल जो है वो हल हो सके, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक मकसद ये होता है कि इनोवेशन इन टीचिंग, कि तालीम के अंदर, टीचिंग फील्ड के अंदर या सीखने के अमल के अंदर जो है, पढ़ाने के अमल के अंदर जो है नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई जो जिद्दत आ रही है, नई नई जो चीज़ें दरियाफ्त हुई है, उसके बारे में जो है टीचर को जो है वो रोशनास कराया जाए, उसको बताया जाए, उसको जो है वो अवेयर किया जाए, उसको उसके इस्तेमाल के बारे में उसको बताया जाए, ठीक है। तो ताकि वो जाकर मास्टर के अंदर बच्चों को जो है उसे देखा तरीके से जो है वो तारीफ दे सकें, उनकी तरबियत कर सकें। उसके बाद इनोवेशन से मिलती है डेटा का यूज़ ऑफ ICT इन एजुकेशन, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल जो है किसी के अंदर क्या है, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि जो आप तालीम है ये जो है दिन ब दिन जो है ये बेहतरी की तरफ जा रही है, इसमें नए नए तरीके तदरीस आ रहे हैं, ठीक है, बल्कि आप दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन की तरफ चली गई है, ठीक है। और आजकल जो है वो कंप्यूटर में जो तालीम है ये नहायत ज़रूरी हो गई है, ठीक है। तो इसलिए और ये जदीद तरीका तदरीस भी है, ठीक है, इससे बच्चों की जो है वो कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा
माइंड की जा सकती है, बच्चे जो है ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हैं, ठीक है, जो सीखने का अमल है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, ठीक है, टाइम सेविंग हो जाती है, ठीक है, कॉस्ट सेविंग भी है, ठीक है। तो टीचर को जो है वो आई सेविंग के इस्तेमाल के बारे में बताया जाए, वो जो है वो इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, इसके फ़वाइद क्या है, ठीक है, इस चीज़ों से जो है उसको काम कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे डायनामिक अप्रोच, ठीक है, डायनामिक अप्रोच को अपनाने के लिए डायनामिक अप्रोच से मुराद टीचिंग एजुकेशन का लिया जाता है कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, यानी आप इसको अपने मसाइल के मुताबिक, आपकी जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इसको जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो आप उसके मुताबिक इसको जो है वो अपने रिक्वायर के मुताबिक, आपने जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसको ढाल सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए ये मुंजमद टाइम नहीं है, ठीक है, यानी आपको जो है वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक, ठीक है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को मद्देनज़र रख के आप इसको जो है अपने तरीके में ढाल सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदे जो है हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, उन टीचर के अंदर जो है वो जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बढ़ाने के लिए, उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करने के लिए, ठीक है, तो वो इसलिए भी जो है टीचर्स की जो है ट्रेनिंग की जाती है, या वो जो है ट्रेनिंग से जो है वो दी जाती है, ठीक है, यानी तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, उनके अंदर मज़ीद खुद एतमाद दिलाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप कह सकते हैं नीड ऑफ द टाइम टू कम्पीट विद अदर्स, ठीक है, नीड ऑफ द टाइम टू कम्पीट विद अदर्स, तो दूसरों के साथ मुकाबला करने के लिए, ठीक है, यानी अगर आप जो तालीम है वो बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी में इसको किया है, ठीक है, दुनिया के हमारे जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इस में आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप टीचर्स को जो है वो नई चीज़ों के साथ जो है वो विश्वास करें, ताकि ये काफ़ी टाइम टू कम्प्लीट ठीक, कि आपने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, दुनिया का साथ चलना है, ठीक है, तो आप जब तक नई चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे, नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होंगे, नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो तब आप जो है वो दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, दुनिया के साथ बात नहीं कर सकते हैं, दुनिया के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि टीचर को जो है ट्रेन किया जाए, ताकि वो बच्चों को जो है उस तरह से तालीम तरीके दें कि ताकि वो जाकर दुनिया के सामने जाए, तो वो अपने आप को जो है उनके मुकाबले में मुकाबला बना पाए, उनके सामने जो है अपने आप को जो है वो कम महसूस नहीं करें, ठीक है। तो ये टीचर एजुकेशन के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है, या इसका स्कोप ये है, इसका दायरा कार ये है, इसके अंदर हम कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है, इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं, इसके मुकासर क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमने देखी हैं कि ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर इसके कौन से फ़वाइद हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी जो है इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई जो है इससे रिलेटेड जो है कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।